Hey guys, welcome back to the channel. This is Sai Dental Vlogs, and if you are new to this channel, I make videos on dentistry. So recently I have heard and I have got many DMs as well as newspaper clippings in various places of municipal corporation people busting in dental clinics. I really didn't want to make any video on this, but पता है ना, खून खोलता है ना ये सब चीजें देख के, तो I really get pissed off on all these things. कि means we serve humanity, we relieve the pain, but still we have to bear all these kind of blunders by the municipal corporation people asking money from dental clinics, why they are open. So basically whatever zone it is here, whatever zone you're in COVID-19, whether it's a containment zone or the red, orange, green, whatever it is, we have to do our work. We cannot lose our patients. We cannot just leave a patient who has been calling you again and again, and he is calling you to just extract his tooth because he is not able to sleep. And people don't know, these municipal corporation people don't know that dental pain doesn't get relief with medicines all the time. If the tooth is hot, severely in pain, even if you give Zerodol SP or if you give any kind of painkiller, Lysoflam, it's not going to work. It only works for a moment, like 2 hours. Even if you give Kitrol DT, it works for a moment. Even if you give Dynapar AQ injections, how many injections the patients will take every day? और लगाने वाला कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, सबके घर पे डॉक्टर तो पैदा नहीं हुआ है ना, so they have to go outside every time they are exposing themselves to the virus. Suppose you stay in Mumbai or in a place where there are a lot of COVID patients and see the plight of the patients. Already the media has produced so much scare on this coronavirus. Yes, it's scary. I also admit it. It's a very contagious disease. But see the plight of the patient. You talk over the phone on the from the patient. You tell the patient to give antibiotics, analgesics for whatever time it is, 5 days. Then again the patient calls you, so the pain is not reduced. What to do? Then you tell the patient you are not going to the clinic. Even you are scared. You are telling the patient to give intramuscular injections. ओके, पेशेंट ने लगवा लिया, एक बार जाके बाहर निकल के लगवा लिया, 2 बार लगवाया, 3, कितनी बार पेशेंट यार? अल्टीमेटली वी हैव टू रिमूव द टूथ, वी हैव टू डू. एंड व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, they are coming to the clinic and busting. They are putting fines, they are locking down the clinics, they are scolding the doctors, dentists who are there inside, they are scolding the staff. Means tab to why we will go to the clinics and do all these things? Already we are in great loss. We are not getting the amount to just only pay our bills, to pay our EMIs, to pay our whatever salary we are giving to the assistants. They also rely on us. We have to at least do extractions, emergency care. For example, there is a severe pain in any tooth, we have to do some care to the patient. Then what the patient, why they are relying on us? Patient will go to a government hospital, get it done somewhere. Well, the patient will get somewhere. अगर क्लिनिक में नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो पेशेंट जाएगा ना, उसको 3,000 भी देना पड़े. And to my astonishment, I am hearing people taking 10,000, 15,000, 25,000 for extractions. Like, this is not good actually. अगर आप ले भी रहे हैं तो ठीक है, आप पीपी किट का पैसा लेके आप 2,000, 2,500 लीजिए, पर यार 15,000, 20,000 इसको तो like this is आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ. मतलब लूटना हो गया ये तो. मतलब ठीक है, आप ले रहे हो 2-3 हजार ले रहे हो, इंपैक्शन कर लो, इंपैक्शन ओके चलता है. समटाइम्स इन मुंबई, प्लेसेस लाइक मुंबई और इन प्लेसेस लाइक बैंगलोर, यू कैन टेक 10-15, बट see the condition. You cannot exploit people, right? The people in municipal corporations, they are coming, and what is the local IDA is doing? They should approach the BMC, whatever municipal corporation is there, the local IDA, the DCI. They are not doing anything for this. So this has to be stopped. और अगर आपके एक जगह पे ये हो रहा है तो मुझे मैसेज करिए, तो इसके रिलेटेड आई विल मेक मोर वीडियोस. सो ये पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, ये बात एटलीस्ट DCI तक पहुंचनी चाहिए, IDA तक पहुंचनी चाहिए कि या प्रोटेक्ट द डेंटिस्ट्स विद दीज काइंड ऑफ ब्लंडर्स. अगर हमारी खुद की इंडियन डेंटल एसोसिएशन और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, या जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो डेंटल काउंसिल होती है, वहां के लोग हमें अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? पहले ही डेंटिस्ट को नौकरी नहीं है, डेंटिस्ट को कोई फैसिलिटी नहीं है, डेंटिस्ट की कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है,
MDS करने के बाद भी लोग सफर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो हक बनता है कि एटलीस्ट सपोर्ट किया जाए लोगों के द्वारा। जब भी जो कॉरपोरेशन वाले दे आर पोजिंग हेफ्टी फाइन्स इन द डेंटल क्लिनिक्स, मुझे ऐसा सुनने में आया है और काफी क्लिप्स भी मिल रहे हैं पंजाब के, दिल्ली के। पीपल आर गोइंग टू द क्लिनिक्स नोइंगली। अब रेडी वाले जितने भी हैं, रोड वाले, रेडी वाले, ये सब्जी वाला, ये सब जो पहले पैसा वसूला जाता था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो तो बंद हो गए हैं। तो तुमको डेंटल क्लिनिक ही मिला कॉर्पोरेशन वालों, ये चीज को मतलब पैसा निकालने के लिए डेंटल क्लिनिक्स में तो सीधा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्यूटी या कोई ब्यूटी पार्लर है या फिर कोई स्पा है जिसमें हम लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। एक टूथ एक्सट्रैक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी मेहनत है, जो टेक्निक हम सीख रहे हैं उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। पेशेंट को तभी डेंटिस्ट की वैल्यू पता चलती है व्हेन द पेशेंट इज इन सीवियर पेन, बस कैसे करके दांत निकल जाए। तो बेसिकली आई थिंक वी ऑल शुड टेक अप दिस मैटर एंड वी शुड tell the concerned authorities about this, and the local IDA and DCI should also take some action regarding whatever issues we are having. They should be at least, if you're not helping us in getting us some money or some jobs, at least help in this support. In this support से दुनिया चलती है। सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सपोज अब मुझे फाइन लग गया 50,000 रुपीज का, मैं कहाँ से लाऊंगा। I have to open my savings, I have to open my FD, I have to break my LIC, then only I can pay so much fine. अब अगर इतना भी नहीं हो सकता आप लोगों से तो प्लीज मतलब डेंटल क्लिनिक खोलना तो बेकार ही हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही मैं रखूंगा। मैं ये बोलना चाहता था आप लोगों को। अगर ये पसंद आया तो लाइक करिए और इंस्टाग्राम में कोई क्वेरी है sai_dental में फॉलो करिए। और प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपके शहर में या आपकी जगह पे ऐसा हो रहा है तो हम उसको ट्वीट कर सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर को या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बंद करनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए ताकि पता चले कहाँ कहाँ ऐसे हो रहा है एंड इसी तरीके से हम लोग अपने फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना बाय वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम। और अभी कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये फेस शील्ड मैंने अभी मंगाया है, 400 रुपीज़ का है, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देता है। इंस्टाग्राम में मैंने इसकी फोटो भी दी थी। तो रिसेंटली अर्जेंटली मैंने अपने मम्मी का रूट कैनाल करना पड़ा मुझे, और कोई नहीं मिला घर पे ही, मतलब मम्मी का फ्रैक्चर हो गया तो आई हैड टू डू इट यस्टरडे। वो फोटो भी मैं इंस्टा में आज डालूंगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और उसमें अभी रूट कैनाल हो गया है। तो जब घर पे ही प्रॉब्लम आती है, सोचिए घर की मम्मी को ही डेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनको कितनी सारी प्रॉब्लम होगी अर्जेंट, जिनकी रूट कैनाल करने की जरूरत है। तो पता नहीं कब कर सकते हैं रूट कैनाल, पर तो मैंने तो किया, बस अपनी मम्मी का ही किया मैंने। तो देखते हैं आगे क्या होता है एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर।